was there, that is physical properties. Today I need to start the physical properties and chemical properties. So now I'm going to start the physical properties of haloalkane. In physical properties of haloalkane, there are 4-5 properties, but the most important property are only 2. 4-5 property, लेकिन सबसे important केवल 2 है. See, first you can see the 3 properties here: color, physical state and smell. So in the case of color, it is written that pure form of haloalkane are colorless. Pure haloalkanes are colorless, but when it comes in contact of air, it give the color. So pure substance colorless होता है, any haloalkane, but in presence of air it gives color. Next, lower members. Lower members, as you have studied in class 11, कि 6 carbon till 6 carbon all are gases, more than 6 carbon to 14 carbon are liquid, and higher than that number of carbon that are solid. So same is here. Lower haloalkane like methane, ethane, propane, chloromethane, bromomethane, iodomethane means 4 carbon or 5 carbon. Compound, haloalkane compound which contain 4 carbon or 5 carbon, that are gases, and higher are liquid or solid. There are 3 properties given in first point which are not very much required, but due to reducing in syllabus, maybe this year this will be a 1 mark question. अभी तक तो ये कभी नहीं आता था कि फिजिकल स्टेट क्या होता है, स्मेल क्या होता है, बट मे बी ड्यू टू reducing in syllabus this will be a question for 1 marks in your question paper. So इसलिए इसको please revise this. Next, the most important is MPBP. In MPBP there are 3 way. The question will ask MPBP से question केवल यही बनेगा, arrange the following in increasing order of melting point and boiling point. Arrange the following in increasing order of MP and BP means लिखे नीचे लिखे haloalkanes को increasing order of MPBP में arrange करिए. So arrange the following in increasing order of MPBP. So what is the pattern of MPBP that you need to remember? There will be 3 case. 3 case है. First case, see here. When alkyl part means the alkane part is common in all, that is having same number of carbon, 1 carbon 1 carbon, you can see R is written, it means all of them have same number of carbon, but halogen are different. One is iodo, one is bromo, one is chloro, one is fluoro. So same number of carbon compound is there, but halogens are different. Means chloromethane, bromomethane, iodomethane, fluoromethane, all are methane but different halogen, or all are ethane but different halogen, all are propane but different halogen. So first you will see ki what type of compounds are given. If compounds are having same number of carbon containing alkyl group and halogens are different, then you will follow this pattern ki MPBP of iodo is highest and fluoro is least. Means RI की MPBP सबसे ज्यादा होगी, then BR, RBR ब्रोमो की, then after क्लोरो and the least MPBP will be of fluoro, सबसे कम fluoro की होगी if the alkyl part is similar. Now next, second condition, see the condition, alkyl part is similar, halogen are different. Now alkyl part and halogen both are similar. अब alkyl part भी same है, halogen भी same है. If you will see these all 3 which I had circled, then all have the formula C4H9Br. सबका formula है C4H9Br. In all have 4 carbon compound and Br, 4 carbon compound and Br, 4 carbon compound and Br. Then what is difference? The difference is in their degree. It is first degree haloalkane. As you know, halogen is attached with 1 degree carbon. Here halogen is attached with 2 degree carbon, so 2 degree haloalkane. Here halogen is attached with 3 degree carbon, so 3 degree haloalkane. So if the number of carbon and halogen all are same,
but degree are different, लेकिन degree अलग अलग होगा, then in this case the third degree will have the least MPBP, second degree have the more, and first degree have the highest MPBP. You can see here 375, 364 and 346. So MP and BP is inversely proportional to degree. Degree के inversely proportional है. If degree is higher, MPBP will be less. And third is not given here. Third I am going to inform you. The third is there, that halogen will be same, that is Cl, ठीक है, like CH3Cl, then C2H5Cl, then C3H7Cl, then C4H9Cl. So in this, all the compounds have same halogen. Halogen same है. All the compounds have same degree. All of them are first degree. सब first degree है. But the number of carbon are different. It has 1 carbon, it has 2 carbon, it has 3 carbon, it has 4 carbon. Means number of carbon are different, but degree and halogen are same. Then in this case, the higher number of carbon will have the higher MPBP. जिसमें कार्बन ज्यादा होगा उसकी MPBP ज्यादा होगी. So C4H9 will be the highest MPBP and CH3 will be the least MPBP. So remember 3 pattern are there. 3 पैटर्न है, 3 तरीके से पूछ सकता है कि alkyl group are same but halogen are different, then iodo is highest and fluoro is least. If alkyl group is same, number of carbon is same but degree are different, then higher degree will have the less MPBP, lower degree will have the high MPBP. And third one, alkyl group are different but halogens are same. In this case, higher alkyl group will have higher MPBP, lower alkyl group will have the lower MPBP. So these are the 3 pattern for MPBP. If anyone will have any question, then that person that can ask the question. Remember only 3 pattern will come. आपको pattern पहचानना है कि alkyl group same है, halogen different है, और alkyl group halogen दोनों same है लेकिन degree अलग है, और alkyl group अलग है और halogen same है. So this is MPBP, most important. Next one is density. Density में आपको बस ये याद रखना है कि Sir, why temperature is decreasing? Hello? Yes. Sir, in previous slide, previous slide, temperature is decreasing. Yes, sir, in this one. So in this, which one you are asking? The 3 patterns in which temperature is decreasing continuously. Acha, third degree. Why third degree it is decreasing? Yes, sir, in all 3 temperature is decreasing continuously. Temperature means that is MPBP. MPBP is decreasing, means you want to ask कि third degree का MPBP क्यों कम हो गया है second degree से, या first degree का क्यों ज्यादा है. तो reason is here the effect, one effect you know from class 11, that is hindrance effect और shielding effect. Shielding effect mostly यूज होता है आपका जो है एलिमेंट के लिए. hindrance effect आपने शायद पढ़ा होगा कि जितना ज्यादा साइड चेन होता है, बल्किल ग्रुप वर्ड मिला होगा, बल्किल ग्रुप, as much as the side chain is increases the bond is becomes weaker. जितना साइड चेन बढ़ेगा उतना बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा. लाइक सी, जैसे अगर हम कहें कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, चारों पोलर बॉन्ड है. बट कार्बन के साथ अब 2 और कार्बन अटैच है और 2 हाइड्रोजन अटैच है, सो दीज 2 आर साइड चेन. तो इन दोनों साइड चेन में ये नॉन पोलर बॉन्ड हो गया. सो एज मच एज द ब्रांचिंग इज इंक्रीजेज, जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है, उतना वो बॉन्ड वीक होता है. जितना बॉन्ड वीक होगा उसकी MPBP भी उतनी क्या होगी, डिक्रीज होगी. दैट्स व्हाई हिंड्रेंस इफेक्ट, इट इज कॉल्ड हिंड्रेंस इफेक्ट और बल्किल ग्रुप इफेक्ट. तो यहाँ पे जितना साइड चेन बढ़ेगा उतना बल्किल ग्रुप इफेक्ट होगा, जितना बल्किल ग्रुप इफेक्ट होगा उतना आपका बॉन्ड वीक होगा, जितना बॉन्ड वीक होगा उतना MPBP डिक्रीज होगा. इज दैट क्लियर? यस सर. ठीक है. बल्किल ग्रुप, इसमें देखिए जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, केवल वन साइड चेन है.
इसमें जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच है तो 2 नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। इसमें जो है जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच है तो 3 नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। एज द ब्रांचिंग विल इंक्रीज, जितना साइड चेन बढ़ेगा, जितना डिग्री बढ़ेगा, उतना बॉन्ड वीक होगा और उतना आपका क्या होगा, एमपीबीपी घटेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay, so this is the MPBP pattern. 3 patterns are here. You need to identify कि हेलोजन सेम है, एल्किल डिफरेंट है, या एल्किल डिफरेंट, एल्किल सेम है, हेलोजन डिफरेंट है, और दोनों सेम है, डिग्री अलग अलग है। नाउ नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी में आपको केवल एक चीज याद रखना है, डेंसिटी अभी तक आता नहीं है लेकिन बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग इन सिलेबस आई एम सेइंग मे बी दिस ईयर दिस विल बी अ क्वेश्चन। सो डेंसिटी में केवल फ्लोरो की डेंसिटी वाटर से कम है, वाटर से कंपेयर करना है। द डेंसिटी ऑफ फ्लोरो एल्केन इज लेस देन वाटर। फ्लोरो की डेंसिटी वाटर से कम है, बाकी सारे की डेंसिटी, ऑल द हेलो एल्केन हैव मोर डेंसिटी देन वाटर। बस आपको ये याद रखना है कि फ्लोरो की डेंसिटी वाटर से कम है एंड रेस्ट क्लोरो ब्रोमो आयोडो की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। And now the another most important and last physical property of haloalkane is solubility. This is very important question. Melting boiling point में केवल pattern आता है and in this the region based question will be there. First 2 questions will be from there. केवल 2 question बनता है। पहला question कि हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स आर soluble in water or not। पहला क्वेश्चन बनता है कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड वाटर में सॉल्यूबल होता है या नहीं। हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड इज सॉल्यूबल इन वाटर और नॉट। देन सी हियर it is written very slightly soluble in water. So haloalkane are very slightly soluble, और इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं तो कहेगा insoluble in water. सो एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि हेलो एल्केन इज पोलर। हेलो एल्केन पोलर कंपाउंड होता है। इट हैज CX बॉन्ड विच इज पोलर। एज यू नो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हेलो एल्केन में जो CX बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, पोलर होता है। तो पोलर डिजॉल्व इन पोलर। वाटर में भी पोलर बॉन्ड है, वाटर में HOH, तो वाटर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, सो दैट इज ऑल्सो पोलर बॉन्ड। और आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर, एंड आयनिक डिजॉल्व इन आयनिक, नॉन आयनिक डिजॉल्व इन नॉन आयनिक। तो उस हिसाब से अगर ये हम लगाते हैं तो हाइलोजन, हेलो एल्केन इज हैविंग पोलर बॉन्ड। हेलो एल्केन के पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, हेलो एल्केन के पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। देन व्हाई हेलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज याद कर लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में anything will be soluble in water only when that component will have the hydrogen bond or that component can form the hydrogen bond. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस तभी वाटर में डिसॉल्व होता है, उसका पोलर नॉन पोलर से मतलब नहीं होता है। इनऑर्गेनिक में वो सब मेथड यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी देखनी है तो वाटर में कोई सब्सटेंस तभी सॉल्युबल होता है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस, व्हेन the organic substance will have the hydrogen bond or organic substance can form the hydrogen bond with water। या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पास अपना खुद का हाइड्रोजन बॉन्ड हो या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। सो हियर इन हेलो एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। हेलो एल्केन इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। दैट्स व्हाई हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल। हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल। देखिए यहाँ लिखा है, एक ही चीज को दो तरीके से बोला है। फर्स्ट इट इज रिटन कि वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल है। अगर ये पूछेगा कि व्हाई हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल और वेरी लेस सॉल्युबल in water, then you will say because it has the polar covalent bond। इस polar covalent bond के कारण it is slightly soluble। बट वहीं पे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इतना कम सॉल्युबिलिटी होता है, दैट इज 5% और 7%, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक और बनता है आपके, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है। वाई एक्सरसाइज देखेंगे तो वाई हेलो एल्केन्स आर इमिसिबल इन वाटर। सो कहेगा वाई इमिसिबल इन वाटर, उसमें मिक्स क्यों नहीं होता है, वाई इमिसिबल इन वाटर। देन आंसर विल बी देयर बिकॉज
हेलो एल्केन इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलो एल्केन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। रिमेंबर दिस। दो क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से देना है। एक क्वेश्चन विल बी देयर, व्हाई हेलो एल्केन्स आर स्लाइटली soluble in water, then you will say because in halo alkanes CX bond is polar bond। CX bond क्या होता है? पोलर बॉन्ड होता है। और दूसरा, why halo alkanes are immiscible in water, this is the question in your NCERT exercise। why halo alkanes are immiscible in water, give the reason। then for that अगर immiscible पूछेगा तो आपको कहना है कि because halo alkanes are not having हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलो एल्केन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और पूछेगा स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है, तब आपको कहना है बिकॉज इट हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यही दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। प्लीज रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस पैराग्राफ। Sir, नाउ यस sir, in haloalkane, if halogen is chlorine, then it will be soluble. नो, halogen will be chlorine, fluorine or bromine or iodine, the solubility will be very less। solubility बहुत कम होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच विथ एनी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट केवल 3 है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, देन ओनली इट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बट यहाँ पे हैलोजन जो अटैच है वो हाइड्रोजन से नहीं अटैच है, हैलोजन इज अटैच विथ कार्बन। सो पोलर बॉन्ड कार्बन और हैलोजन के बीच है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो क्लोरीन भी अगर होगा then also that is immiscible and very less soluble, solubility will be there but very less। is that clear? Yes, sir. आप इस चीज को वहां मत जोड़िएगा। आई थिंक आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि वाटर में जो क्लोरीन पिल्स डाली जाती है उससे नहीं ना कनेक्ट कर रहे हैं। हेलो, जो वाटर का क्लोरीनेशन किया जाता है, वाटर के बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरीन की दवा डाली जाती है, उससे नहीं ना इसको मैच कर रहे हैं। बिकॉज दैट टाइम इट इज क्लोरीन Cl2 नॉट द हेलो एल्केन। वो हेलो एल्केन नहीं ऐड किया था, क्लोरीन। तो क्लोरीन कैन बी सॉल्युबल इन वाटर बट क्लोरो एल्केन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्लोरो एल्केन सॉल्युबल नहीं। इज दैट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. ओके, सो रिमेंबर टू क्वेश्चंस आर देयर। अगर पूछेगा व्हाई लेस सॉल्युबल, तब आप कहेंगे पोलर नेचर। और कहेगा व्हाई इमिसिबल, तब आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई दिस सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाई दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, मान लीजिए कि एल्कोहल ही कर दिया कि एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, हेलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? तो जिसको आपको कहेगा सॉल्युबल इन वाटर, तो आपको सीधे लिख देना है, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए सीधे रीजन लिख देना है कि बिकॉज इट इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाता है। और जिसको भी लिखेगा कि वाई इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, कि ये क्यों इनसॉल्युबल है, तो आप सीधे कहिए बिकॉज इट इज नॉट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट विल नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता भी नहीं है और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता भी नहीं है। रिमेंबर दिस, बिना हाइड्रोजन बॉन्ड के नथिंग विल बी सॉल्युबल इन, ठीक है, नथिंग विल बी सॉल्युबल इन वाटर विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। remember this, that is for organic condition I am saying, I am not saying for inorganic कि सर KCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो ये नहीं हो रहा है, आयनिक की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? बिकॉज दिस सॉल्युबिलिटी विल बी कम इन ईच टॉपिक। अभी हेलो एरेन आएगा उसमें भी आएगा सॉल्युबिलिटी, फिर अगला चैप्टर अल्कोहल फेनॉल उसमें भी सॉल्युबिलिटी, ईथर में भी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का बस एक ही कंडीशन है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर आपको पढ़ना है एंड दैट इज डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन बॉन्ड। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी देयर इट इज सॉल्युबल, हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट बी देयर दैट विल बी इनसॉल्युबल। तो आई थिंक इट इज clear. So now physical property is over. Physical property, smell, color, mpbp, physical state, density and solubility. Now
chemical properties. So haloalkane, we are discussing about the haloalkane. Haloalkanes are showing 3 chemical properties. haloalkane 3 chemical properties show करते हैं. Nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metal. Nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metals. 3 are there. Nucleophilic substitution reaction is also named as SN reaction. इसको अब इस नाम से जान लीजिए क्योंकि अब यही नाम ज्यादा आएगा. SN reaction. SN reaction जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक का N है और सब्स्टिट्यूशन का S है. SN reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, SN reaction. सेकंड है elimination reaction and third one is their reaction with metal. Out of these 3, the most important one is SN reaction. सबसे important SN1 है जो कि अप्रॉक्स आपका जो है 7-8 रिएक्शन का है. And elimination reaction and reaction with metal is small, केवल 2-3 रिएक्शन का है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट द एलिमिनेशन, देन रिएक्शन विथ मेटल, एंड एट लास्ट आई विल कंप्लीट द न्यूक्लियोफिलिक. मतलब इन तीनों में नंबरिंग के अकॉर्डिंग पहले SN reaction is given, but first I will discuss the elimination, then after reaction with metal, and last I will discuss the SN reaction because it will take approx half an hour. So I will start this tomorrow. If you want to see here कि where it is given, then from the present slide number 23, ये लिखा है SN reaction. 23 से लेकर के ये स्लाइड नंबर, ये देखिए सारा सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा स्लाइड नंबर, ठीक है, स्लाइड नंबर 40, स्लाइड नंबर 39 तक ये पूरा SN रिएक्शन है. 23 से 39 मतलब 16 पेज है इसमें आपके, और जिसमें 8 और 9 रिएक्शन है. एंड elimination is here, slide number 40 means page number 40 अगर PDF की बात करें. So this is written here, elimination reaction. I am going to discuss this one. It is of 2 पेज, ये 2 पेज का है, एक रिएक्शन एक एग्जांपल है. ठीक है, so I will complete this first and then after reaction with metals. 2 reactions are here. One is Grignard reaction and second is Woods reaction. Woods reaction, so you know from class 11th also. So Woods reaction and Grignard reaction. Now see elimination. Remember these all reaction will come in the next 3-4 chapter again. So आपको यहीं से सारे reaction को समझ लेना है. As I informed you कि all the chapters are connected with each other. So see elimination, as the word is saying, elimination मतलब क्या होता है, रिमूव होना. elimination means रिलीज होना. elimination राउंड आप देखते हो, elimination वीक देखते हो प्रोग्राम वगैरह में, elimination क्रिकेट मैच में होता है. so elimination means रिलीज होना, means in this reaction something will be removed from the taken reagent. जो reagent हम लेंगे उसमें से कुछ निकलेगा, and if something will be removed from that, then its valency will be disturbed. Then that valency will be completed by the formation of one extra bond. If single bond will be there, then the product will becomes double bond, and if double bond will be there, then product will becomes triple bond. इसको याद रखिएगा. elimination reaction में क्या होता है, elimination reaction में बॉन्ड बढ़ता है, नंबर ऑफ बॉन्ड विल बी इंक्रीज. मतलब आपको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन से एल्कीन में कन्वर्ट करना है, यू वांट टू कन्वर्ट एल्केन इनटू एल्कीन, मींस नंबर ऑफ बॉन्डिंग बढ़ाना है, देन एलिमिनेशन रिएक्शन. एल्कीन से एल्काइन करना है, then again elimination reaction. So keep this in your mind कि for increasing the number of bond, elimination reaction will be used everywhere in organic chemistry. Now what is elimination reaction? So when any haloalkane, see this is haloalkane, ये B से मतलब नहीं है, ये नहीं है उसका पार्ट, ये केवल बता रहा है कि B का मतलब बेस है, उससे मतलब नहीं है. There is a compound haloalkane. इन दिस haloalkane, अब आपको एक चीज और जानना है, अल्फा बीटा कार्बन. अल्फा बीटा कार्बन. So remember that carbon at which halogen is present,
इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। एंड द नेक्स्ट कार्बन विच इज अटैच विद दैट अल्फा कार्बन, उस कार्बन से जो अटैच होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है, दैट ऑल आर बीटा कार्बन। मीन्स बीटा कैन बी मोर देन वन बट अल्फा विल बी वन। अल्फा कार्बन पूरे कंपाउंड में केवल एक कार्बन होता है, सिंगल कार्बन, और बीटा कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 साइड से। ठीक है, सो पहले अल्फा बीटा समझ लीजिए कि दैट कार्बन एट विच हैलोजन ग्रुप इज अटैच। डिग्री नहीं पता करना है आपको, केवल देखना है कि किस कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट है, उस कार्बन को लिख देना है अल्फा, और उसके लेफ्ट राइट या नीचे या ऊपर कहीं पे भी अगर कार्बन अटैच है तो दैट ऑल विल बी बीटा। ये चीज आपको याद रखना है। क्यों? नाउ सी what is elimination reaction. Heading will be elimination reaction. You will write when any haloalkane which have beta hydrogen, कोई ऐसा हेलोएल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो। बीटा हाइड्रोजन का मतलब बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन पाया जाएगा, दैट हाइड्रोजन विल बी बीटा हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन विल बी बीटा हाइड्रोजन। तो आपको ये भी चेक करना है कि बीटा कार्बन जो है उस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। If hydrogen will not be there, then that will not undergo elimination reaction. तो बीटा कार्बन प्लस, जैसे अब आपको मैंने कह दिया CH3 CH, या मान लीजिए कि if it is here C C Cl 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 C, और मे बी मान लीजिए ये CH2 है Cl एंड हियर इज C, यहाँ पे मान लीजिए कि NH2, यहाँ पे मान लीजिए CH3 देन C। तो जिस कार्बन पे हैलोजन है वो अल्फा हो गया, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा कार्बन तो है बट बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बीटा कार्बन इज नॉट कंटेनिंग द हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है। सो दैट हेलोएल्केन, वो हेलोएल्केन विच विल हैव द बीटा हाइड्रोजन, जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो, when heated with alcoholic KOH। another information, एरो के ऊपर एल्कोहलिक KOH लिखा रहेगा, एरो के ऊपर एल्कोहलिक KOH। रिमेंबर दो चीजें हैं, alcoholic KOH और alcoholic NaOH। KOH is best one, NaOH will be used for some specific substance, कुछ specific substance या कुछ specific compound के लिए केवल NaOH यूज होता है, बट KOH। बट हियर इज टू कंडीशन, एक तो एल्कोहलिक लिखा रहेगा और कभी कभी लिखा रहेगा एक्वस, एक्वस KOH। तो केवल KOH से मत पहचानिएगा, डोंट थिंक कि KOH या NaOH लिखा बस चल दिए। एक्वस KOH मतलब पानी में KOH या NaOH मिला के सोल्यूशन बनाया गया है। एंड एल्कोहलिक KOH मींस एल्कोहल इज द सॉल्वेंट, एल्कोहल में NaOH KOH मिला के सोल्यूशन बनाया गया है। सो व्हेन द एल्कोहलिक KOH विल बी देयर और एल्कोहलिक NaOH विल बी रिटेन देयर, देन ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। एक्वस लिखा रहेगा तो वो एलिमिनेशन नहीं होगा। एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक्सरसाइज में दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन में लिखा रहेगा एक्वस NaOH, एक रिएक्शन में लिखा रहेगा एल्कोहलिक NaOH। तो जो एल्कोहलिक NaOH लिखा रहेगा दैट विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक, एक्वस में एलिमिनेशन नहीं होगा, रिमेंबर दिस। सो एल्कोहलिक KOH is the important condition. So what you will write, when any haloalkane with beta hydrogen heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, then हीट करेंगे तो क्या होगा, हीटेड विथ एल्कोहलिक KOH तो क्या होगा, C
दिस कार्बन इज कंटेनिंग हेलोजन, इस कार्बन पे हेलोजन है, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। देन अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा, हेलोजन विल बी रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन, हेलोजन विल बी रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन, एंड हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन बीटा से रिमूव होगा, बीटा वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटा देना है, अल्फा वाले कार्बन से जो भी हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है उसको हटा देना है। जब दोनों को हटा देंगे, देन मान लीजिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे से हेलोजन था वो निकल गया, इस पे से हाइड्रोजन था वो निकल गया, सो दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, सो दैट वैलेंसी विल बी कंप्लीटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ वन मोर बॉन्ड, एक और बॉन्ड वहां बन जाएगा, सो दैट एल्केन विल बी कन्वर्ट इनटू एल्कीन, एंड डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म जस्ट बिटवीन दैट टू कार्बन, जिनमें से एक से हेलोजन निकला है, दूसरे से हाइड्रोजन निकला है, उन्हीं दोनों के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा, एंड दैट विल बी एल्कीन, और वो क्या हो जाएगा, एल्कीन। तो दिस इज रिटन हियर, मतलब इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बनेगा, एल्कीन। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, when a haloalkane with beta hydrogen is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide or KOH, then there is elimination of hydrogen atom from beta carbon, इस चीज को याद रखिएगा, हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है, एंड हाइलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइलोजन एटम अल्फा कार्बन से रिलीज होता है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज फॉर्म एल्कीन, एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। दिस इज एलिमिनेशन, मतलब प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, सी हियर, प्रोडक्ट एल्कीन बन गया, अल्फा से हेलोजन निकल गया, बीटा से हाइड्रोजन निकल गया। नाउ क्वेश्चन, एक तो ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट। नाउ द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन ही नाम क्यों दिया गया। एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक अल्फा एलिमिनेशन, एक बीटा एलिमिनेशन। in your syllabus everywhere beta elimination is given, alpha elimination is only in aldehyde chapter, so why it is called beta elimination, ऐसे पूछता है कि why it is called beta elimination, then remember it is called, देखिए यहाँ लिखा है, it is called beta elimination because the hydrogen atom is eliminate from beta carbon, hydrogen atom कहाँ से रिलीज हो रहा है, बीटा कार्बन से, because hydrogen atom is eliminate from beta carbon, that's why this reaction is called beta elimination reaction, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा वही उसका नाम होता है। इफ हाइड्रोजन विल बी रिलीज आउट फ्रॉम अल्फा देन इट इज कॉल्ड अल्फा, हाइड्रोजन विल बी रिलीज आउट फ्रॉम बीटा देन इट इज कॉल्ड बीटा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन इज रिलीज आउट फ्रॉम बीटा कार्बन। सो दो क्वेश्चन बना, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, पहला क्वेश्चन है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, देन यू विल से दैट, आप ऐसे कहेंगे कि व्हेन a haloalkane which have beta hydrogen atom is heated with alcoholic KOH, then hydrogen is eliminated from beta carbon and halogen is eliminated from alpha carbon to form the alkene, that is called elimination reaction. And then after this example, now next क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, तब आप कहेंगे बिकॉज इन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन halogen is eliminate from alpha carbon and hydrogen is eliminate from beta carbon, that's why it is called beta elimination, जिससे हाइड्रोजन निकलता है वही उसका एलिमिनेशन टाइप होता है। सो ये तो हो गया, फिर साइंटिस्ट को फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, साइंटिस्ट हैव स्टार्ट टू परफॉर्म द रिएक्शन टू सी दैट इट इज राइट और रॉन्ग। सो फॉर दैट व्हाट इज हैपन, एज आई इन्फॉर्म यू कि अल्फा विल बी 1 बट बीटा कैन बी मोर देन 1, बीटा एक से ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम 3,
3 साइड से कार्बन अटैच हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इफ साइंटिस्ट हैव स्टार्ट द प्रोसेस की क्या if 1 beta is there or 2 beta is there or 3 beta is there, so in all the case only one product will be formed or more than one type product will be formed. They have find that ki if 1 beta is there then it form only one alkene. If 2 beta is there then it form two product, means two alkene, two types of alkene. If 3 beta is there then it form 3 types of alkene, 3 तरह का alkene बनाएगा। फिर आया कि all of them are having similar amount or different amount। तब आया कि ना, out of all, जैसे 1 बीटा है तब तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, that 100% is that product। if 2 बीटा is there तो उसमें से एक मेन प्रोडक्ट होगा that is मेजर अमाउंट और दूसरा लेस अमाउंट में होगा माइनर। if 3 is there तब भी उसमें से एक मेजर होगा एंड रेस्ट 2 आर माइनर। सो उन्होंने शुरू किया कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा, ये सब देखना शुरू किया। तो उनको एक पैटर्न मिला और पैटर्न के बेसिस पे दे हैव गिवन वन रूल। दैट रूल इज गिवन बाय एलेक्जेंडर जेटसेव। साइंटिस्ट का नाम है एलेक्जेंडर जेटसेव, एलेक्जेंडर जेटसेव, ठीक है। बट द रूल इज कॉल्ड सेटजेफ रूल। रूल को सेटजेफ रूल कहते हैं, रूल इज कॉल्ड सेटजेफ रूल। तो दिस इज अनदर नेम रिएक्शन टाइप। जैसे मार्कोनी कॉफ रूल था एंटी मार्कोनी, तो वैसे सेटजेफ रूल। बट सेटजेफ रूल विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन मोर देन 1 बीटा कार्बन विल बी देयर। जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन होगा तभी सेटजेफ रूल एप्लीकेबल होगा। इफ ओनली 1 बीटा कार्बन इज देयर तब सेटजेफ रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। व्हाट इज सेटजेफ रूल? अब सेटजेफ रूल क्या है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टुमारो आई विल रिवाइज इट अगेन, तो हो सकता है थोड़ा और इजी हो जाए। सी, जैसे ये एक ऑर्गेनिक हेलोएल्केन है। in this you can see this second one carbon is alpha carbon because halogen is on this। so इससे एक कार्बन इधर लेफ्ट साइड अटैच है, दिस इज बीटा। एक राइट साइड अटैच है, दिस इज बीटा। सो लेफ्ट और राइट अटैच है, बीटा बीटा। सो इट हैज 2 बीटा कार्बन। ये एक हेलोएल्केन है विच हैज 2 बीटा कार्बन। अब जब 2 बीटा कार्बन है तो इट हैज द 2 पॉसिबिलिटी। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। मे भी हो सकता है कि दिस अल्फा एंड दिस बीटा, अल्फा से हेलोजन निकले, बीटा से हाइड्रोजन निकले, देन द डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी मे बी अल्फा एंड दिस बीटा विल बी देयर। ये अल्फा बीटा पार्टिसिपेट करें, देन द डबल बॉन्ड विल बी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। तब डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच होगा, देन दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सो टोटल 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक जिसमें कि डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकेंड कार्बन के बीच होगा और दूसरा जिसमें डबल बॉन्ड सेकेंड थर्ड होगा। बट विच वन विल बी मेजर, क्या दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे या कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा? देन यू कैन सी ये वाला ज्यादा अमाउंट में होगा और ये वाला कम अमाउंट में। बोथ आर हैविंग 5 कार्बन, दोनों में 5 कार्बन है। पेंट 2 इन, पेंट 1 इन, केवल डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पर है, ठीक है। सो वन विल बी मेजर, वन विल उसमें से 19% ये बनेगा पेंट 1 इन और 81% बनेगा पेंट 2 इन। अब आया कि कैसे ये पता चला कि यही मेजर होगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? फॉर दैट कि विच वन विल बी मेजर, टू आइडेंटिफाई दिस द रूल इज गिवन सेटजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बाय इलिमिनेशन रिएक्शन, जो नाम लिखा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये इलिमिनेशन का ही दूसरा नाम है। इलिमिनेशन का ही दूसरा नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मोर देन 1 एल्कीन इज प्रोड्यूस, एक से ज्यादा एल्कीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट अब इसमें क्या करा है,
दैट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, वो एल्कीन मेजर होगा इन विच द मोर एल्किल ग्रुप अटैच, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन। जो दो एल्कीन बना है, देखिए ध्यान से, इसका मतलब जो दो एल्कीन बना है, इन दोनों एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, बस आप इसको चेक करिए, डबल बॉन्डेड कार्बन को, दो कार्बन डबल बॉन्डेड है, केवल इनको, इन दोनों कार्बन पे आप साइड चेन देखिए, कितना साइड चेन इनसे अटैच है, जिसमें साइड चेन ज्यादा होगा दैट विल बी मेजर। तो इफ यू विल सी दिस वन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हैं, इस कार्बन से, फर्स्ट वाले कार्बन से कोई साइड चेन नहीं है, सेकेंड वाले कार्बन से ये एक पूरी साइड चेन लगी हुई है। सो दिस इज हैविंग वन एल्किल ग्रुप, इसमें एक एल्किल ग्रुप अटैच है, इसमें ये दोनों डबल बॉन्डेड हैं, इस वाले कार्बन से एक ये मेथिल ग्रुप अटैच है, एंड इस वाले कार्बन से, लेफ्ट वाले से, ये दो कार्बन की चेन, मतलब एक एल्किल ग्रुप अटैच है। सो 1+1 2 एल्किल ग्रुप इसमें है, इसमें लेफ्ट राइट दोनों साइड अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन से, और उसमें केवल लेफ्ट साइड अटैच है, राइट साइड वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे कुछ अटैच नहीं है। So in this one alkyl group is present, in this two alkyl group is present. So जिसमें alkyl group ज्यादा होगा that will be major product. आपको केवल देखना क्या है, कहाँ पर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, वहां डबल बॉन्ड लगा देना है। डबल बॉन्ड लगाने के बाद चेक करना है कि इन विच कंपाउंड द डबल बॉन्डेड कार्बन हैव मोर एल्किल ग्रुप, किस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्किल ग्रुप ज्यादा है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे एल्किल ग्रुप ज्यादा है दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, वही उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सेजेफ रूल। सो वंस अगेन, एलिमिनेशन रिएक्शन अगर आता है तो आप कहेंगे कि when any beta hydrogen containing haloalkane heated with alcoholic KOH, then halogen removed from alpha carbon and hydrogen removed from beta carbon to form, ठीक है, to form alkene. This process is called beta elimination reaction. Why it is called beta elimination reaction? Second question. Because in this reaction हाइड्रोजन इज इलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन, हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन से इलिमिनेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज बीटा एलिमिनेशन। थर्ड, if more than one beta will be there, then how many product will be formed? If more than one beta will be there, then more than one product will be formed. Then which one will be the main product? Main product or major product will be identified by Sedgwick rule. Now what is Sedgwick rule? Then this rule is given by Alexander Zaitsev. According to this rule, when any haloalkane having more than one beta carbon is heated with alcoholic KOH, then form more than one alkene. Out of that alkene will be major product in which double bonded carbon have more alkyl group. उनमें से वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे ज्यादा एल्किल ग्रुप अटैच होगा। दिस इज द एलिमिनेशन